Namaste to all of you. We regret the inconvenience caused, but we've been very quickly. We have kind of moved portals and we are good to go. Wishing all the dignitaries and dear audience a very happy Indian Independence Day. Vande Mataram. On behalf of Atmalaya Academy, I heartily welcome you all to our fourth webinar, Celebrating the Spirit of Bharat. We today present an array of talk and performances. May I now request my guru and director of Atmalaya Academy, renowned dancers, choreographer, and research scholar, Dr. Padmaja Suresh, to kindly introduce today's session. Satguruve Namaha. Namaskarams to one and all here. An apology on behalf of both Indology Foundation and Atmalaya Academy to keep everyone waiting, and at the last 11th hour, having changed the meeting link, there was some technical problem on this very first WebEx that we tried. Due to suggestions from many of our past meeting attendees, we tried to shift from Zoom, but somehow God's wish is that we still have to hold on to that Zoom till such a time that we are very comfortable with alternatives. So I deeply apologize, and I'm sure that many people haven't been able to come in because it is a last minute intimation to all those whom had messaged, and we immediately got back to them that we have changed. But I promise the little girls who performed and also the others who are going to be performing and talking that we will definitely repeat their performance in the forthcoming webinars that are lined up, so they do not have a feeling that their audience got marginally reduced or substantially reduced. So today is India's Independence Day, and it has been our aspiration that we all get together from different parts of the world, we as Indians who love our nation, truly, sincerely, and I'm sure all those who are abroad will agree that every time the national anthem plays, we have this feeling within us, the vibration within us where we feel, yes, I love my country so much. And so this tribute to Bharata is nothing but a tribute to also Bharata Muni, and Bharata stands for Bhavam, Ragam, Talam, which is the true meaning of India, a country, the people of whom are truly expressive, extremely emotional, full of melody, full of rhythm and balance between the worldly and the otherworldly. In every walk of life, we try to balance between the supernatural and the mundane. And today too, we have someone very eminent, Professor Deenbandhu Pandeyji, who's going to be talking to us about something that we are so proud of, the emblem of the nation, and what the world looks at it as. As you all know, there are several misconceptions also about the sheen, the luster of the emblem. And Pandeyji was regretting that the so-called popular belief has to be corrected. So I would look for a platform to talk about that, and we heartily welcome him. The junior ensemble which performed, and we have the hosts here who are supporting me from USA. We have Aparna and Vaishali from Melbourne, someone who we're all already very familiar in the last webinars, Srimati Chandana, and from India, all my students who are putting this up together, because this is one way in which we can all connect, and we can invite great eminent artists. Like today we have Dr. Mahua Mukherjee, who have devoted an entire lifetime for dance, and the last few months there is no platform where we can really come one-to-one with audience, which is what is performing art about. So this is nothing but a very small percentage of what we achieve on stage, and somehow we are seeing to it that that doesn't get discontinued because of this
world crisis that we are. And unfortunately, even if people will say that artists and art forms are come under unessential or inessential goods, today because of that, because of the arts, we are able to sit in a lockdown. Only because of that, we're all still feeling happy and connected. I'm sure all of you will agree. So today we proceed now, giving our homage to the great nation, the nation with, despite all the invasions, all the problems that it is faced through, has tremendous resilience. Nothing has been possible except because of our great language, our tradition, our culture, our art forms, our music, and our dance forms. And we have a very promising young musician also who's going to engage you all with some national patriotic songs. And I'll be very happy that all of you can put on your speakers towards the end and give a chorus along with him. So we now proceed with our performance. Thank you. Thank you, Padmaja ma'am. That was a very inspiring introduction. We now proceed to the next segment, introducing artist, pioneer, researcher, and exponent of Gaudiya Nritya, Dr. Mahua Mukherjee. Dr. Mukherjee, along with her husband, Sri Amitav Mukherjee, has dedicated her life to revive Gaudiya Nritya. She has worked relentlessly to provide structure to the present-day Gaudiya Nritya form. With the knowledge imparted by her gurus and her own research of the ancient scriptures, temple carvings in very remote places, it would only be apt to say that Dr. Mukherjee has resurrected the once lost in time dance form to be one of the classical dances of India. Dr. Mukherjee strives to promote Gaudiya Nritya through her institute, Gaudiya Nritya Bharati. She at present serves as a senior professor of Department of Dance at Ravindra Bharati University and has several publications and performances, lecture demonstrations to her credit at various prestigious institutions all across the world. She has also been featured in documentaries sponsored by Government of India. Several youngsters have been receiving scholarships to study Gaudiya Nritya under her guidance. We now present a short performance by Dr. Mahua Mukherjee, music composition by Sri Amitav Mukherjee, music contribution by Sri Ayan Mukherjee. Namaskar, I am Mahua Mukherjee. I will be going to perform Gaudiya Nritya. My first item is based on Rashi. I am from Kanya Rashi, so I will be performing the Kanya Rashi. The music rendered by my husband, Gaudiya music researcher Pandit Amitav Mukherjee, and music played by my son Ayan Mukherjee. It is Raga Veem Padashri, Kanya Rashi. मिथुनाः कर्कट सिंह कुमारिकाः तुलाली धनुष नक्र कुंभमीना स्ततः पराः
विलासी सुजनल्लधी सुभगो धर्मपुरीतः दाता दक्ष्यः कबीर्वृद्धो वेदमार्गपरायणः सर्वलोकप्रियो नाट्यगन्धर्वव्यसने रतः प्रवासशीलः स्त्रीदुःखी कन्या जातो भवेन्तरः कन्या जातो भवेन्तरः कन्या जातो भवेन्तरः। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री नमस्तुते। जयत्तंग देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते
महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमसुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमसुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये जा जन खट्टा गुरु जा जन खट्टा था तेरे खट्टा गुरु था तेरे खट्टा जा जन खट्टा गुरु जा जन खट्टा था तेरे खट्टा गुरु था तेरे खट्टा जा जखिन्नता तखिन्नचा जखिन्नता तखिन्नचा जखिन्नता तखिन्नचा जखिन्नता तखिन्नचा जखिन्नता तखिन्नचा के जा जखिन्नचा जा जखिन्नचा जा जा जखिन्नचा मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते कामाख्ये वरदे देवी
मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते Such a beautiful performance, and congratulations to Dr. Mahua ji. And now I would like to request Mahua ji to say a few words on this occasion. Honored, I'm grateful to Atmalaya Academy, especially my regards to Dr. Padmaja Suresh, a wonderful dancer and scholar. I have seen many performances in this presentations like Innate Connection, and also I've had so many lectures. So, he's my favorite. And I'm honored that you have invited in this auspicious day. So, and the Bharat Mata, and I, uh, from my core of my heart, I dedicate myself in Mataji's, so Devi Durga, so one of the form of Bharat Mata. And I'm grateful also to all the members here, the seniors and juniors. So my respect to all of you. And at the same time, one renowned priest of Calcutta and a scholar, Sanskrit scholar and astrologer, Ranjan Patro, he has helped me for this Rashi Sloka I have got from him after Padmaja told me about the Rasi program. So I asked him and he said, and I'm from Kanya Rashi. So this Kanya Rashi, when he said me, I just surprised. The total sloka absolutely fit with me. So I am wondered, and thanks to Padmaja once again that I could be able to know the detail of the Kanya Rashi. And thanks a lot for giving me such wonderful experience to watch the program and everything. That it is dance beautiful. Okay, thank you so much. Thank you, Mahua ma'am. It was such a pleasure watching your performance and such subtle emotions. Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. We have with us today an eminent personality, a karma yogi whose life mission has been Bharata. Jnana Sindhu, Professor
Dr. Dinabandhu Pandey sir needs no introduction. A historian, an Indologist, and a research scholar, Dr. Dinabandhu sir has donned numerous responsible roles that have paved way for the resurgence of our culture and ethos. He has been instrumental in bringing to light the historical significance of Sri Rama Janmabhoomi. He is a member of the Indian Council of Social Science Research, former head of Art and Tourism Management, Banaras Hindu University, and editor and author of erudite publications and journals. It's an honor to have you with us, sir. Over to you, sir, for your presentation on the aesthetics and significance of the quadruple lion of our emblem. हाँ, हमारा चित्र आएगा ना कहीं? Is the voice all right? आवाज जा रही है? Yes, sir, we can hear you. हाँ पांडे जी, सब ठीक है. Okay. So I start. आज मुझे विशेष रूप से हिंदी में बोलने का आग्रह किया गया है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हिंदी में बोलना. तो आग्रह को रखते हुए और अपनी इच्छा को भी एक साथ जोड़ते हुए आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो विषय हमें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है उसकी हम एक रूपरेखा और उसको आरंभ करते हैं. देखिए, एक रूपरेखा है कि हम क्या आपको उपस्थित करने जा रहे हैं. हमारा भारत जिसके माध्यम से प्रस्तुत हो जाता है वो प्रतीक, द सिंबल, ये एक ऐसी चीज है जो कुछ भी न रहे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये भारत है. इसका एक चाक्षुष जो दिखाई देने वाला है, चाक्षुष प्रतीक. मैं आगे इसकी विशेष चर्चा करूंगा और इस चाक्षुष प्रतीक में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो आप इस फोटोग्राफ में भी, छवि चित्र में भी देख रहे होंगे. अप्रतिम चमक, ऐसी चमक जो किसी भी हमारे देश की एक खास समय के बनी हुई मूर्तियों, स्थापत्य को छोड़कर दुनिया में कहीं भी कोई एक मूर्ति इस अप्रतिम चमक जैसी नहीं बनी. एक बड़ी भारी बात है. हमारा देश जितना महान है, हमारे देश की कलाएं भी उतनी ही महान. हम लोगों ने अभी भरतनाट्य से आरंभ किया. भरत जी ने स्वयं कहा है, इतिहासो मया सृष्टा. उन्होंने एक इतिहास रचा. तो इस तरह से ये जो ऐसी अनेक और भी बातें हैं और भी वस्तुएं हैं, लेकिन ये जिस पर हम आज आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं, ये भी एक इतिहास रचा गया. एक इतिहास में एक कड़ी नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है.
तो मैं इसके थोड़े से सौंदर्य के बारे में, थोड़ा प्रतीक क्यों चुना गया इसके बारे में, और इसकी जो मौलिक संरचना है और वो चमक है, उस पर जो विदेशी लेखकों ने जानबूझ करके भारत को यह श्रेय नहीं देने का प्रयत्न किया, उसके प्रमाण और हम उसको कितना प्राचीन तक जानते थे, इसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ, पीपीटी ठीक दिख रही है ना? पीपीटी ठीक दिख रही है? हेलो सर। हाँ, सब ठीक है। आवाज तो पहुंच ही रही है। आपको पीपीटी ठीक दिख रही है? हाँ, दिख रही है सर। ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो ये एक आत्मालय की ओर से और इंडोलॉजी फाउंडेशन की ओर से, और साथ ही भारत सरकार ने जो इस हम लोगों को सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए, मैं आप सबको अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि हम सबका उत्साहवर्धन इसके कारण। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा, क्योंकि भारत के संदर्भ में और भारत के प्रतीक के बारे में बात करनी है, तो पहले मैं भारत क्या है ये बात बताना चाहूंगा। देखिए, यह एक अखंड भारत का स्वरूप है, और किन किन ग्रंथों में क्या क्या बाउंड्रीज, इसकी सीमाएं क्या क्या बताई गई हैं, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं उनमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, लेकिन मैं इतना कह दूं, देखिए पश्चिम की ओर पारसिक और सिंधु, सौवीर, ये सब नाम आते हैं पश्चिम दिशा में, जो रामायण में कहे गए हैं कि ये देश हमारी भूमि के भीतर अंतिम देश है। इसी तरह से उत्तर का, पूर्व का और दक्षिण का, दोनों समुद्र का, ये सारे श्लोक हमने यहाँ दिए हुए हैं उनके संदर्भ के साथ। और ये एक नक्शा आपके सामने है, ये हमारा भारत है। अब ये बात अलग है कि परिस्थितियों वश, कालक्रम के हिसाब से उस जमाने में क्या हुआ, लड़ाई हुई, कुछ हुआ, जिसके कारण हम जो आज एक उससे लघुतर भूभाग में अपने को मानते हैं, लेकिन है नहीं। हमारा भारत, ये जितना आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा मेरा, हमारा है, आपका, सबका भारत है। ये सारा हमने ये बताया है, मैं इसमें ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब सप्तद्वीपीय पृथ्वी हुई और उस पृथ्वी में से धीरे धीरे उसके बंटवारे का एक पूरा इतिहास हमें मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है, और भी पुराणों में है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में बड़ा स्पष्ट काल के हिसाब से कहा गया, पूर्व माध्ये त्रेता युगे। त्रेता युग के आरंभ की बात यह है जब प्रियव्रत ने सप्तद्वीपी में से जम्बू द्वीप को अपने सुपुत्र को सौंप दिया, और जम्बू द्वीप को नाभि नामक जो हम लोगों के पूर्व पुरुष थे उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनको जो भूभाग मिला उसका नाम दिया है हिमावम, यानी हिम से ढकी हुई जो पृथ्वी थी, और उससे दक्षिण का पूरा हिस्सा जो था वो उन्हें प्राप्त हुआ। हिमावम दक्षिणम वर्षम भरताय पिता ददौ, ये नाभि ने भरत को दे दिया। तो इस प्रकार इस भरत के माध्यम से तस्मात् भारतम वर्षम तस्य नामना महात्मना,
उस महात्मा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मैंने अति संक्षेप में इस बात को आपके सामने रखा है, क्योंकि इस पर हमें कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करना है। एक बात बताई कि जो हमारा पूरा भूभाग अभी आपको मैंने दिखाया, वह भूभाग किस प्रकार से एक वर्गीकरण के रूप में हमारे सामने ग्रंथों में दिया हुआ है। आज हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में जो भारत हमें प्राप्त हुआ, हम सब लोगों को चाहे जिन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और ये नाम, क्योंकि इस समय हमारे देश का नाम मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन के कारण इंडिया था, भारत था, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान था, ये सब नाम थे, जरूर कहते जरूर थे, लेकिन प्रशासन के ओर से जो भी नाम था वो इंडिया ही था सबके लिखने पढ़ने और प्रयोग में। लेकिन जब इसका नामकरण करने को हुआ तो भारत नाम किस प्रकार किया गया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जी बड़े प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और राजनीति में भी पूरी ख्याति वाले, उन्होंने ये हुआ कि कहाँ से नाम हिंदुस्तान रखा जाए, क्या रखा जाए, तो खारवेल, कलिंग देश का राजा खारवेल के अभिलेख में भारत वर्ष नाम आया है। इसलिए प्रामाणिकता के साथ, एक पुरातात्विक प्रामाणिकता के साथ हमारे इस थोड़े से हिस्से का जो नाम नया रखने का हुआ, तो भारत जो पुराना नाम था वही हम लोग, और उसका ये प्रमाण है, ये सारा हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये रखना, इसके हर एक को हमको बताने की जरूरत नहीं, समय को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रमाण के लिए ये सारी बातें, ये उस अभिलेख का अंश है और है जहां जहां उसका नाम आया है उसके बारे में है। अब देखिए, जब भारत देश आया तो देश के प्रतीक क्या हो सकते हैं और केवल देश का क्या प्रतीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रतीक हम लोगों के शासन के लोगों ने तय किए हुए हैं और वो कई बार घटते बढ़ते भी रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ करीब 16 ऐसे प्रतीक हैं जिनकी मान्यता हमारी सरकार ने दी हुई है। लेकिन इन 16 के बारे में न करके जो भारत का सीधे प्रतीक हमको दिखाई देता है और माना जाता है, जिसकी मोहर लगती है हर जगह पर, ऐसे प्रतीक की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। ये वो पत्र है, ये आर्काइव से निकाल करके उसका फोटोग्राफ हम आपके सामने रखे हैं कि प्रामाणिकता के साथ देखिए 29/12/1947 को ये तय किया गया कि सारनाथ में रखे हुए, सारनाथ के संग्रहालय में रखे हुए ये चतुर्पार्श्वांकित जो सिंह फलक है, इसको देश का प्रतीक माना जाए। इसमें ये आदेश तय हुआ, मीटिंग हुई, तय हुआ और उसको फॉलो ऑन किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। इसमें ये भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ये नीचे हमने इस चित्र के नीचे उसको अंकित किया हुआ है कि इसका जो पूर्ण स्वरूप है। देखिए, 2 चित्र इसीलिए आपके सामने हम रखे हुए हैं, एक में कमल दल के साथ और ऊपर सिंह, लेकिन जो वास्तव में हमारा प्रतीक है वो चक्र जहां पर बना हुआ है, चक्र तक ही प्रतीक रखा गया। और उसके लिए एक कारण भी दिया गया कि वो इतना लंबा हो जाता है कि वो
सरकारी कार्यों में बहुत यानी बाधा जैसी लगेगी या बहुत सुखद नहीं होगा, एक लंबी सी मुहर लगाना या कहीं भी छापना या कुछ करना। तो एक ऐसी लंबाई उन्होंने इसमें से निकाली और ये हमारे देश का प्रतीक है। एक आपके उसको आप कंपैरेटिव ढंग से एक दूसरे को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा है उस पत्र में, उस निर्णय में, कि ये सामने का एक जो चक्र है और जिस चक्र के बाएं दाएं एक वृषभ और एक और वो अश्व, दौड़ता हुआ अश्व बना, इसी सामने वाले भाग को हम अपना प्रतीक मानते हैं। ये देश का प्रतीक है। लेकिन इसका कारण कुछ और रहा होगा कि यही सामना क्यों लिया, क्योंकि चार ओर से ये देखा जा सकता है, चार में तीन को क्यों नहीं लिया, तो उसके कुछ और कारण होंगे। और विशेष रूप से जो मेरा उसको ध्यान से देखने की मेरे लिए इच्छा हुई, जैसे मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि क्यों नहीं लिया गया, तो ये मैंने देखा कि दूसरी ओर के कुछ हिस्से टूटे फूटे हैं, वो क्षतिग्रस्त है। और क्षतिग्रस्तता के कारण जो सामने का हिस्सा कम से कम बहुत ही न्यून क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसको ग्रहण किया गया। देखिए उसी समय का है, ये 15 अगस्त 47 में एक उस पूरे चित्र के साथ डाक टिकट दिया गया। लेकिन इसके साथ ये भी लिखा गया उस पत्र में कि इस चित्र के साथ या इस प्रतीक के साथ एक उद्देश्य मंत्र भी रहेगा, जिसको बाद में तय किया जाएगा। और उसके लिए जब इसे 26 जनवरी 50 में इसको तय किया गया, तो मुंडक उपनिषद के मंत्र 316 मंत्र मैंने दिया हुआ है, उसका आरंभिक 2 शब्द सत्यमेव जयते, इसको चुना गया। और वह इस चित्र के साथ नीचे हमेशा लिखा जाएगा और वह देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, ये भी तय हुआ। तो इस तरह हमारा का प्रतीक है वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अब मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो हूँ ही, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हमारे भारत रत्न हैं, उन्होंने इस सत्यमेव जयते को 1918 की कांग्रेस, उस समय वे उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, तो उस समय उन्होंने ये सुझाव दे रखा था और उस सुझाव को अपनाया गया और उस मुंडक उपनिषद के इस अंश को सत्यमेव जयते, पूरा मंत्र मैंने दिया है, उसका अर्थ आदि दिया है। और ये बहुत जरूरी है जानना कि ये जो मोटो, जो हमारा उद्देश्य शब्द है या मंत्र है, वो कैसे आया। तो इसलिए एक आपको जब जिस समय लिया गया उस समय रंगीन फोटो नहीं हुआ करते थे, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट, और बाद में ये रंगीन चित्र, दोनों एक कंपैरिजन के लिए आपको मैंने दिया है। अब मैं इसके मूल पर पहुंचता हूं, क्योंकि अब हम थोड़ा सा उसके सौंदर्य की बात, उसके कला पक्ष पर कुछ बातें करें। ये जो सिंह फलक है, ये देखिए एक्सकवेशन में प्राप्त हुआ, पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त हुआ। और ये 1905 की मार्च में जो उत्खनन यहाँ पर हो रहा था, उस क्रम में 1904-1905 के सेशन का, सत्र का जो उत्खनन हो रहा था, उसके मार्च में 1905 में
इसको प्राप्त किया गया। और ये उस समय की खुदाई का चित्र है 1905 का। वो आपको एक ग्राफिक, आप ये महसूस करेंगे कि आप जो बातें हम लोग आगे करेंगे उसके साथ साथ चल रहे हैं। ये हमारा जो प्रतीक है, ये प्रतीक हमारे साथ साथ आ रहा है। इसलिए उस जगह पर जहां से ये निकला है और उस समय वहां रखा गया, और इसमें वो स्तंभ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टूटा हुआ स्तंभ है। तो इसको एक और नजदीक से और फिर एक और बात का चित्र है। ये आपके केवल एक सद्भावना की दृष्टि से कि आप इसको जितनी बार देखें, जितने नजदीक से देखेंगे तो इसके प्रति आपकी रुचि होगी, इसलिए आपके सामने रखा। ये फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टल, एफओ ऑर्टल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। यही उस समय वहां खुदाई कर रहे थे और इन्हें ही उस उत्खनन में प्राप्त हुआ था। ये इस समय सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में ये रखा हुआ है। ये वर्तमान स्थिति है जहां ये सुरक्षित है, संग्रहित है। इसके विभिन्न हिस्से, हाँ, इस मूर्ति के ऊपर एक धर्म चक्र भी लगा था। पहले तो नहीं हुआ, लेकिन उसके फिर बाद में उसकी कुछ टूटे फूटे अंश प्राप्त हुए और उनको एक साथ जोड़ करके कल्पनात्मक ढंग से उसका एक स्वरूप दिया गया। और सिंहों के ऊपर ये जो चक्र है ये अब बनाया जाता है और पूर्णता इसकी उसके साथ ही है। तो इस तरह से ये सब उसके प्रमाण है, कितनी लंबाई है स्तंभ की, कितनी उसके सिरदल की, कितना चक्र का और छोटे चक्र का आदि आदि का। इनमें से कुछ की चर्चा हम आगे करेंगे, तो हम उनको विशेष रूप से आपके सामने है, आपके पास रहेगा और हम एक एक हिस्से को नहीं बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये उसका जो टूटा फूटा हिस्सा मिला उसको इकट्ठा करके और पुरातत्वविदों ने इसको एक साथ जोड़ करके कि कौन सा किस जगह पर आएगा, एक पूरी गोलाई की। और इसमें 32 तीलियां हैं, अरे इसको कहते हैं 32 अरे हैं। जबकि जो सामने दो ये वृषभ और अश्व या और जो हैं दूसरे पशु, उनके बीच में जो चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। 24 तीलियां आमतौर से अगर हम एक वर्ष को दो पक्षों को जोड़ते हुए, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और 12 महीने, तो 12 और 2 तो 24 संख्या आती है। और 32 तेलियां ये महापुरुष के लक्षण होते हैं और 32 धर्म होते हैं। उनको प्रतीक के रूप में अंकित करने का कार्य ये महाचक्र इसको कहा जाता है और बौद्ध परंपरा में इसको धर्म चक्र कहते हैं। यह पूरा का पूरा 18वीं शताब्दी के पूर्व तक सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में था। क्योंकि 13वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वहां पर तहस नहस हुआ, आक्रमण हुए और हुए, उसके कारण वो टूटा फूटा, क्योंकि वो तोड़ा गया। ऐसा पुरातात्विक दृष्टि से भी प्राप्त होता है कि वो तोड़ा गया, अपने से नहीं टूटा है। लेकिन 13वीं शताब्दी में थाईलैंड के राजा ने वाट उमोंग, उन्होंने इसको यहाँ जैसा देखा था ठीक उसी प्रकार का एक रेप्लिका,
इसकी प्रतिकृति अपने देश में बनवाई और लगवाई, उसका भी चित्र मैंने आपके सामने दिया है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि वहां जैसा बना हुआ है और वैसा ही खुदाई में हमको प्राप्त हुआ, पुरातात्विक उत्खनन में हमको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की तीलियां हमको प्राप्त हुई, उतने ही। तो ये एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से केवल प्रस्तुतिकरण है, इसमें एक रुचि तो आती ही है इन सब की जानकारी के लिए। उसी का एक दूसरा रूप है, इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है और दिखाया गया है। तो मैंने संग्रह के तौर पर इस जगह एक स्लाइड में ये डाल दिया है। अब देखिए, अभी हमने चक्र की चर्चा की। एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और दूसरा चक्र है जो धर्म चक्र है, महाचक्र है, उसमें 32 है। संभवतः 32 वाला बाद में प्राप्त हुआ होगा या टूटा फूटा होने के कारण हो सकता है कि उस समय तुरंत नहीं ज्ञात रहा होगा। ये सब संभावनाएं की जा सकती हैं। लेकिन सामने वाला जो 24 तीलियों वाला था चक्र, उसको ही मान्यता दी गई उस मीटिंग, जिस मीटिंग की चर्चा मैंने शुरू में की है। लेकिन यह सरकार को एक बड़े विद्वान राधा कुमुद मुखर्जी, ये लखनऊ में प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर थे और ये एमपी भी थे उन दिनों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन्हीं के विद्यार्थी रहे प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने चक्रध्वज नाम से एक पुस्तक लिखी, बाद में 1965 में ये पुस्तक छपी। तो उनके जो गुरुदेव थे राधा कुमुद मुखर्जी जी ने जवाहरलाल नेहरू से ये बात कही कि इसको सुधार देना चाहिए, हमें ये 24 तीलियों वाले चक्र की जगह 32 तीलियों वाले चक्र को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अब चाहे जो भी कारण रहे हों, जिन भी कारणों से धर्म चक्र नहीं आ पाया, जो महापुरुष के लक्षणों के साथ चक्र प्रतीकात्मक रूप से था, वो नहीं लिया गया और 24 तीलियों वाला ही चक्र हमारे प्रतीक चिन्ह में आया। ये उसके बहुत सारे हमने आपके सामने रखने के लिए, लेकिन एक सुधार किया गया बाद में सुधार क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक के साथ वह 32 तीलियों वाला महाचक्र धर्म चक्र जोड़ दिया। तो ये आपके सामने उसके प्रमाण हैं कि इस तरह से एक जो चीज आरंभ में नहीं हो सकी, हमारे देश ने उसको पुनः जहां एक उचित और सर्वोच्च स्थान पर उसको रख दिया गया। ये वो स्तंभ है जिसके ऊपर आज का जो सिंह प्रतीक है वो लगा हुआ था और इस पर एक अभिलेख है। इस अभिलेख का मूल भाव ये है कि उस जमाने में, अशोक के समय में, बौद्ध धर्म के मानने वाले भिक्षुओं में कुछ झमेला था और उसमें उसने एक आदेश निकाला, क्योंकि वो धर्म भी मान चुका था, उसका निजी धर्म भी बौद्ध धर्म हो गया था। और उसने जो आदेश निकाला वो इसमें ये बात कही गई है कि जो लोग संघ में भेद डालेंगे, फूट डालेंगे, उनको संघ से उनके वस्त्र बदलवा करके, जो पीला वस्त्र पहनते हैं उसको छोड़कर वे सफेद वस्त्र धारण, श्वेत वस्त्र धारण करा के उनको संघ से बाहर कर दिया जाएगा, अन्यथा वो आपस में मिलजुल करके रहें। इस तरह के 3 अभिलेख हम लोगों को प्राप्त होते हैं, एक सारनाथ से, दूसरा सांची से, तीसरा कौशाम्बी से। तो ये उस अभिलेख का मूल रूप आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं।
देवानाम प्रिय, ये देवानाम प्रिय शुरू होता है, प्रियदर्शी, ये पूरा उसका टेक्स्ट है। और इनमें बहुत विशेष हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक अलग ढंग की चीजें फिर होंगी, ये अलग बातें हैं जिनमें कि हम चर्चा करेंगे। हम ये दो चित्र आपके सामने रख रहे हैं। अशोक चूंकि उसका निर्माता है, अशोक का ही वहां पर अभिलेख है, उस अभिलेख में धर्म की बातें की गई हैं। तो अशोक अपने परिवार के साथ, जो सारनाथ जिसे आज हम लोग कहते हैं, इसका प्राचीन नाम मृगदाव है। मृगदाव, काशी के राजा ने मृगों को दान कर दिया था कि वहां से फिर कोई मृग मारा नहीं जाएगा, आदि आदि, उसकी अलग कहानी है। तो ये मृगदाय का एक चित्र, एक अंकन हमें प्राप्त होता है। और इसी के साथ यहाँ छोटे में है, उसी को बड़ा करके मैंने यहाँ रखा है, ये अशोक और उसकी राजमहेशी मृगदाव आए थे, इससे ऐसा पता चलता है। लेकिन ये जो शुंग काल का ये अंकन है, और इस शुंग काल के अंकन में जो स्तंभ है वो अष्टास्त्र है, 8 पहल वाला है, 8 साइडेड। तो इसलिए यह एक काल्पनिक चित्र उस समय ही बना, उस समय भी काल्पनिक चित्र बनाया गया। और ये भी हो सकता है कि कलाकार को नहीं मालूम होगा कि वो गोल स्तंभ था आदि। फिर भी यह, चूंकि यह एक संदर्भ जुड़ता है अशोक से, और अशोक के आने की भी बात इससे कही जाती है, तो मृगदाय का चूंकि यहाँ पर अंकन है, इसलिए मैंने आपके सामने सारनाथ की चर्चा करते हुए सारनाथ के मूर्ति की चर्चा करने के साथ साथ एक अपेंडिक्स के रूप में आपको मैं बता दूं। अब देखिए, मौर्यों का एक खास काल है। 322 से चंद्रगुप्त का राज्य शुरू होता है और 180 ईसा पूर्व तक पूरे मौर्यों का राज्यकाल रहा। इस राज्यकाल में 2 ही लोग कला की दृष्टि से अधिक प्रमुख हैं, जिनके, और वैसे तो चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में वो उसका बसाया हुआ नगर, वो भी उत्खनन में प्राप्त हुआ है, लेकिन अशोक और दशरथ ने एक गुफा बनाई नागार्जुनी पर्वत पर, तो इसलिए उसका नाम। लेकिन मुख्य रूप से अशोक अकेला है जो मौर्य काल की कला का प्रवर्तक है। ये अशोक का साम्राज्य था, जो उस समय अशोक पूर्व से लेकर के और अफगानिस्तान तक की जो क्षेत्र है वहां उसका राज्य था। हमारा देश इतना बड़ा था। आज हम पहले आए छोटे रूप में, हमने आपको दिखाया कि इस समय हम कैसे हैं, लेकिन चूंकि हम अशोक की चर्चा कर रहे हैं तो अशोक के समय में हमारा देश कितना लंबा चौड़ा था आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये देखिए अशोक की गरिमा। अशोक का राज्य चाहे जितना रहा हो या जितना हमने आपको दिखाया है, लेकिन ये जितना लाल हिस्सा है, इन सारी जगहों पर अशोक के धर्म की गूंज थी, अशोक के द्वारा ग्रहित बौद्ध धर्म की गूंज थी, अशोक के मानव धर्म की गूंज थी। और अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट है वो बौद्ध धर्म की ओर से ही लिख रहा है, लेकिन जो धर्म के जो सारी चीजें बताई हैं वो मानव धर्म के रूप में उसमें अधिक से अधिक बातें कही गई हैं। उसके सारे अभिलेखों में ये बात कही गई है। और उसके 13वें शिला अभिलेख में ये सारे राजाओं के नाम आए हैं। एंटियोकस, टॉलेमी, मगस, अलेक्जेंडर, एंटिगोनस, इनके नाम आए हैं। और ये कहा है कि इन देशों में भी धर्म की गूंज हमारी वहां तक पहुंची हुई है। तो धार्मिक साम्राज्य
एक मानवीयता का साम्राज्य अशोक के समय में एक लंबे भूभाग में प्रभावित किए हुए था। ये प्रामाणिक रूप से हम कह सकते हैं। ये आपके सामने इसलिए दिया कि अशोक के पहले भी कुछ कलाकृतियों का हम लोगों को संकेत मिलता है। उन संकेतों में ये बात है, और एक अभिलेख में भी वो कहता है कि हमारे अभिलेख उन स्तंभों पर भी लिखवा दिए जाएं जो पहले से खड़े। तो केवल वही अपने स्तंभ नहीं बनवा रहा था, उसके पहले भी स्तंभों की रचना हमारे देश में की गई, और उसके ही शायद वंश के ही लोगों ने स्तंभ लगवाए थे। उन पर भी उसने आदेश दिया कि हमारे अभिलेखों को अंकित किया जाए। ये कुछ चीजें, जैसे ये कुछ गुफाएं हैं बिहार में। अभी हमने नागार्जुनी पर्वत का नाम लिया, तो आपको केवल जानकारी के लिए कि केवल स्तंभ और केवल शिलालेख और यही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो अशोक के समय में बनाई गई। उसकी एक लिस्टिंग पूरी हमने यहाँ दी हुई है, बराबर केव्स, और उसमें जो जो चीजें हैं, रॉयल पैलेस है, स्पेशली सारनाथ का है, पिलर्स हैं, गुफाओं के नाम आदि हैं। ये एक लिस्टिंग आपके सामने मैंने रखा। मुख्य बात यह है कि ये जो चतुर्पार्श्वांकित सिंह, ये इसकी जो चमक है और इसमें क्या कहा गया है, हम इस विषय पर अब आते हैं। यह एक अप्रतिम चमक वाला मूर्ति के रूप में गढ़ा गया एक उदाहरण है। इसके हिस्से हम आपको बता चुके हैं पहले ही, लेकिन हम इसमें इसकी जो एक प्रतिमा शास्त्रीय या आइकॉनोग्राफिक बात जो है उसको बाद में लेते हुए हम आपको यह बताते हैं कि ये सारनाथ वो जगह, मृगदाय वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश किया, और उस धर्मोपदेश का ही या उस घटना का ही एक प्रतीक रूप है ये चतुर्पार्श्वांकित सिंह। और मैंने आपके सामने एक दो शब्द आपके सामने कई बार मैंने लिखे हुए हैं, आलोको उपपादि। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इन बातों को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये धर्म है, इस धर्म का पालन हम लोग करें। और उस पूरे उनके संभाषण में ये 9 बार आलोको उपपादि, आलोको उपपादि, आलोको उपपादि, आलोको उपपादि, ये वो उनका आता है। इसलिए मैंने उन सबको इकट्ठा करके आपके सामने रखा है कि ये आलोक है जिसको अशोक ने एक तरह से इसमें ढाल दिया है। इस सिंह शीर्षक में अशोक ने इस आलोको उपपादि, बुद्ध के उस आलोको उपपादि के कहने को, और जो आलोक उस समय उत्पन्न हुआ, चाहे ज्ञान का आलोक हो, भावनाओं का आलोक हो, दृष्टि में आलोक हो, वो सब अशोक ने इस सिंह शीर्षक में मूर्त रूप में डाल दिया। ये एक बड़ी भारी बात है जिसकी चर्चा लोग नहीं करते, इसलिए मैंने उसको बार बार लिख करके कि ये प्रभाव डाल सके हमारे श्रोताओं पर, हमारे दर्शकों पर, जो लोग हमें आज सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें। आलोको उपपादि, उन्होंने कुछ बात कही, अंत में कहा आलोको उपपादि, विद्या उपपादि, चक्षु उपपादि, ऐसे ऐसे करके उनकी हर एक बात बताने के बाद वो ये एक पूरा वाक्य कहते हैं। और
इसके अतिरिक्त भी एक बात है। वो क्या है, जब उनका संभाषण समाप्त होता है तो अंत में एक बात कही गई है, अपमानो च कुलारो ओ भासो लोके पातु रहोसी अतिकम्म देवानाम देवानम देवानुभावंती। तो ये जो उन्होंने ओ भासो आलोको, वो आलोक का एक स्फुलिंग निकला वहां से, और ऐसा वो पूरे कथा में वो जाता है, द रेडियंस वो निकला और वो पूरे संसार में फैला, वो देवताओं तक गया, आकाश के ऊपर जो 4 लोग कहे गए हैं वहां तक वो उनकी गूंज गई, उनका वो धम्म की गूंज गई, और उसके साथ साथ एक रेडियंस गया, एक उसमें से जो चमक निकली, एक ज्योति निकली, वह ज्योति पुंज भी गई आगे। तो इन दोनों बातों को मिला करके ये ऐसा अद्भुत चमक अशोक ने डालने की कोशिश की, और उसके कलाकारों ने ये एक अप्रतिम कार्य जो हमारे देश के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं करते। देखिए, इसके कुछ थोड़े से आइकॉनोग्राफिक मूर्ति शास्त्र की दृष्टि से 2-1 बातें। ये सिंह है, भगवान बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता है, ये उनकी पदवी थी एक तरह से, और इसलिए जो भी अगर कहीं भी सिंह है तो वो बुद्ध स्वयं है। और बुद्ध की ये जो धम्म गर्जना कही गई है ग्रंथों में, ये धम्म गर्जना तो शेर के अलावा कोई, सिंह के अतिरिक्त की गर्जना तो गर्जना नहीं होती है। तो गर्जना, सर्वोच्च गर्जना जो है सिंह की, और वो उनके धर्म की जो गर्जना हुई, उसको प्रतीक रूप में, जिसमें देखिए ये चारों जो सिंह हैं वो गरज रहे हैं, और ये गूंज ही सारे संसार में फैली और देश आकाश तक पहुंची। चतुर्दिक धर्म की गर्जना हुई। मूर्ति शास्त्र की दृष्टि से एक बात और बतानी जरूरी है कि आमतौर से इसको हम लोग चतुर्मुख सिंह कहते हैं। वस्तुतः ये गलत, हम लोग जो भी कहते हैं या जैसे भी ये प्रचलन में अधिक आ गया, ये चतुर्मुख सिंह नहीं है, यह चतुर्पार्श्वांकित, चारों पार्श्व में सिंह अंकित है। 4 सिंह हैं, एक सिंह के 4 मुख नहीं है, 4 सिंह एक साथ बनाए गए हैं, तो चारों पार्श्व में सिंह अंकित है, अर्थात चारों दिशाओं में सिंह अंकित है। और मूर्ति शास्त्र की भाषा में इसको संघाट कहा जाता है। कई चीजों को अगर एक साथ संघाट, तो ये सिंह संघाट है, चतुर सिंह संघाट है। और कलात्मक दृष्टि से जब हम कहेंगे तो ये कहेंगे चतुर अंकित, चारों पार्श्व में अंकित सिंह। तो ये कुछ खास इसकी आइकॉनोग्राफी के लिए, और इसकी थोड़ी सी आइकॉनोग्राफी और हम आगे आपको बताएंगे। ये गरजने का देखिए, इस लगा है सामने गरज रहा है सिंह। देखिए उसके अलग अलग चित्रों को भी एक भावात्मक रूप से आपको एक प्रभाव उसका, इसलिए हमने आपके सामने रखा। अब देखिए चारों पार्श्वों में जो पीठिका है जिस पर ये सिंह शीर्षक खड़ा है, जो पीठिका है सिंह के नीचे, सिंह के पांव के नीचे, उसके गोलाई में चारों दिशाओं में 4 पशु अंकित है। देखिए पूर्व की ओर सिंह है, पश्चिम की ओर वृषभ है, कहीं कहीं इसको ऑक्स साण लिख देते हैं लोग, लेकिन वो साण नहीं है, वो वृषभ है। उत्तर में अश्व है और दक्षिण में है, गज है, हाथी है। अब इन
चारों को 4 दिशाओं के दिशापति या दिशा पशु कह सकते हैं। इस तरह के प्रयोग हमारे साहित्य में भी हैं और कई जगहों पर, और स्थापत्य में भी इस तरह का प्रयोग हमको प्राप्त होता है। आज भी प्राप्त होता है, पुराने समय के भी स्थापत्य में प्राप्त हुआ है। लेकिन एक मत दूसरा विद्वानों का यह भी है, और मैं भी उसी को मानता हूं, कि इसमें ये दिशाओं को है, चतुर्दिक जब उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैली, तो अब फिर दिशा का प्रतीक देने का सही नहीं लगता है। इसलिए हम इसको मानते हैं, और विद्वानों ने भी माना है कि जो शेर है वो शाक्य सिंह स्वयं है। उनका जन्म हुआ गज के रूप में। अनेक जगहों पर उनके जन्म की कहानी का अंकन हुआ है, भरहुत में हुआ है, और जगहों पर, कई जगहों पर उनके जन्म की चीजें दिखाई गई। तो जब तक उनकी मूर्ति नहीं बनी, तो उनको हाथी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया। धौली, उड़ीसा का धौली में हाथी निकलता हुआ आपके सामने, मैं उसकी भी चर्चा भी आपसे करूंगा। तो इस तरह से उनका जन्म, फिर वो के रूप में वृषभ धर्म का एक रूप होता है, इसलिए धर्म उनका करके जाना, गृह त्याग, रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, और अंत में उन्हें शाक्य सिंह की उपाधि प्राप्त होना, यानी ये महानिर्वाण तक की कहानी आएगी। तो ये 4 उनकी घटनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, और ये जहाँ हुए, ये घटनाएं जिन जगहों पर हुई, माना जाता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं इस बात को कहा है, और एक जगह वो कहते हैं कि इन 4 स्थानों पर जो व्यक्ति जा Is sir there? I think there was some connection problem, probably. We'll just try to see. Just give us a minute, please. का कोई अंकन हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। यह एक जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, कर दिया। तो ये 3 साथ के स्तंभ प्राप्त होते हैं, लेकिन चौथा अश्व के साथ का स्तंभ हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। ये कुछ उदाहरण, ये जो अभी गुफाओं की चर्चा उसका, ये केवल एक कला और कला के और स्थापत्य में, ये देखिए ये भी एकदम चमकीली है। ये सुदामा गुफा है, और उस चमक को दिखाने के लिए ये एक उदाहरण है। देखिए एक व्यक्ति भीतर घुस रहा है और उसकी परछाई दीवार में देखी, जैसे दर्पण में आप देखते हैं कि हम जैसे खड़े हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप देख ले रहे हैं। तो उसी प्रकार का, तो कितनी महत्ता हासिल थी इन लोगों को, कलाकारों को, कि वो किस उत्तम कोटि का यह कार्य कर सकते थे। इसके प्रमाण के रूप में ये हम आपके सामने रखे हैं। कुछ एक आध चित्र और आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे कि किस तरह से ये डैजलिंग लाइट, अत्यंत अद्भुत चमक इन सब पर है। ये दिल्ली में है, ये हमारे फतेहाबाद हरियाणा में है। मैं वहाँ
गया था देखने के लिए, वहां भी ये चमक है। और हिसार के भी खंबे पर ये नीचे का पोर्शन है जिसमें ये चमक है। ये सांची का स्तंभ है जो टूट गया है, और वो भी मैंने देखा और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, जहां कहीं भी शिलालेख भी हैं तो वहां भी वही पॉलिश है। एक ये बड़ी बात है, इसको हम लोग कम बताते हैं, कम लोगों ने बताया हुआ है। बस जो हमारी मूर्ति कला है वहीं तक हम लोग रह जाते हैं, या स्थापत्य के नाम पर जो गुफाएं हैं या जो स्तंभ हैं वहीं तक रह जाते। जहां कहीं शिला पर भी जो उसने अपना अभिलेख लिखवाया, ये गिरनार के का शिलालेख आपके सामने है, और देखिए ये कितना चमक रहा है। यानी यह उस काल के कलाकारों की, उस समय के राजाधिराज अशोक की ये एक चाहत का नमूना है कि वो ये चाह करके विद सर्टेन डायरेक्टिव्स इसको ये कहते हुए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सब जगह पर वो चमक हमको दिखाई देती है। ये केवल एक इतिहास है कि कब कब हम लोगों के यहाँ ये प्राप्त हुआ, किसने पहली बार देखा, किसने बाद में देखा वगैरह। अब देखिए, मैं इस बात को ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 1922 में प्रकाशित, और सर जॉन मार्शल उसमें कला का पक्ष लिखे हुए हैं। इस पक्ष में लिखते हुए उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन इसमें जो ये चमक है ये हिंदुस्तानियों की नहीं है, ये हमारे भारत देश के कलाकारों की नहीं है, ये उन्होंने नाम दे दिया पर्सिया का है, फारस से है। खैर, फारस तो देश ही था, हम छोड़ भी दें इस बात को, तो जानबूझ महत्वपूर्ण कला की चीज है उसमें, उसका अप्रतिम ब्राइटनेस, उसको सिद्ध करते हैं कि यह भारत के कलाकारों का दिया हुआ नहीं है। और उनके इस कथन के नाम पर ये पेज नंबर 621 मैं इसको भारतीय कला के इतिहास का काला पन्ना, दिस इज द ब्लैक पेज। हमारी सर्वोत्कृष्ट जो चीज है उसको बिना समझे बूझे, और हम ये तो ना कहें बिना समझे, बहुत ही समझ बूझ करके हमसे अलग कर देने का ये एक कार्य जे मार्शल ने किया। और मैं इसके विरुद्ध जितनी भी बातें मैं आगे आपके सामने रखूंगा, आप देखेंगे कि किस तरह से इसको एक तरह से बस फिसल गया है। ये हमने वो उनके वाक्य आपके सामने रखे, लिखते हैं कि शाफ्ट ऑफ द माउंटेन कॉलम वेयर कॉपीड। कहाँ से कॉपी किया? पर्सिपोलिस से, नक्शे रुस्तम से और जगहों से। और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो एक तरह से संक्षेप था मैंने आपको बता दिया, और ये सारा लिखा हुआ है। The polish to the stone, lustrous, a polish to the stone। ये टेक्निक यहाँ के लोगों को नहीं प्राप्त थी, इसको वो बार बार कहते हैं। पेज नंबर 621। ये हमारे देश के इतिहास के लिए, हमारे देश के कला के इतिहास के लिए, विशेष रूप से सौंदर्य कला और मूल कला, स्थापत्य कला की दृष्टि से ये काला पन्ना है। और काला पन्ना कैसे है? देखिए, उन्होंने एक प्रमाण दिया
कि अशोक के इस मूर्ति में या स्थापत्य में दिखाई उसके साथ ही साथ बने हुए, क्योंकि लिपि के माध्यम से इस पर ये पारखम का यक्ष है, इस पर अभिलेख भी है। जैसे अशोक के अभिलेख हैं, इस तरह इस मूर्ति पर भी अभिलेख है। तो अभिलेख की लिपि जो है मौर्यकालीन या बहुत बाद समय रख लिया जाए तो लेट मौर्यन का अधिक से अधिक, नहीं तो मौर्यकालीन है। तो उन्होंने ये प्रमाण दिया, ये 3 लाइन लिखी हुई है कि यह कैसे हो सकता है कि जो कलाकार वो बना और जो कलाकार ये पारखम का यक्ष, भद्दा सा यक्ष बना रहा था, वो ये मान ही नहीं सकते कि इस एक जगह की कला में ये 2 इतने फर्क वाली चीज है। इनमें बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने अपना, what then is the explanation, the gulf in between which separates these 2 sculptures, the primitive unifacial image of Parkham and the richly modeled capital of Sarnath. देखिए ये क्या तरीका निकाला उन्होंने इस बात को कहने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूं और सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कितनी बड़ी चाल ये मार्शल ने की। 1922 में वो लिख रहे हैं और 1917 में दीदारगंज की यक्षी पटना म्यूजियम में रखी हुई है। ये किसी भी हालत में अशोक के साथ चतुर्पार्श्वांकित सिंह शीर्षक से कम नहीं है। आप देखते आपके सामने, तो कला तो वही थी। ये यक्षी मूर्तियां अशोक के बाद की बनी हुई कही जाती हैं। तो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ये कहें कि पारखम कितना खराब तरह का बना हुआ है और शीर्षक बढ़िया बना हुआ है, लिहाजा इन दोनों को एक साथ ब्रिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? 1917 में आप ही के पास ये संरक्षित पड़ी हुई है, पटना म्यूजियम की ये धरोहर है। और इससे मुझे इस बात का होता है कि आज भी हमारे पुरातत्वविद, हमारे संग्रहालयविद इस बात को ढो रहे हैं, हमारे कला इतिहास लेखक इस बात को ढो रहे हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ अशोकस पिलर्स एंड देयर कैपिटल्स। यानी इसको हम क्यों ढो रहे हैं? ये सारनाथ में लगाया हुआ है, ये शिलापट्टिका देख के बहुत ही दर्द होता है मन में और तनिक कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए निहार रंजन रे बाबू बहुत ही प्रसिद्ध कला इतिहासकार है और उन्होंने, अंग्रेजों ने यह भी कहा कि स्तंभ बनाने की बात भी भारतीयों की नहीं है, ये बाहर से उन्होंने इसको लिया। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वैदिक काल से संदर्भ देते हुए ये सिद्ध किया कि किस तरह से स्तंभ रचना हमारे भारत की है, लेकिन इस बात को वो नहीं कह सके कि यह जो इसकी चमक है, इस पर जो ओप है वो भारतीय है। उन्होंने ये लिखा कि द डेट वो टू अकामेनियन आर्ट। मौर्यन कलाकार एक तरह से पारसी कलाकारों के ऋणी हैं कि उन्हें ये चमक उनसे सीखने को मिली और वो इस चमक को ढाल सके। तो हम ये समझते हैं कि ये अब उस समय उनको नहीं संदर्भ प्राप्त थे, लिहाजा है शायद उन्होंने लिखा, क्योंकि उन्होंने ही स्थूमा का रेफरेंस दिया, इंद्रकील का रेफरेंस दिया और ये कहा कि ये जो स्तंभ है, स्तंभ बनाने की परंपरा हमारी वैदिक काल से
चली आ रही है, और इसको और लोगों ने भी माना। लेकिन बड़े ही संयोग और बड़े ही हर्ष का विषय है कि परवर्ती विद्वानों ने इस पर कार्य किया। देखिए, हमें आज जो प्राप्त है, बौद्ध जातकों में, बौद्ध महाउन्मग्ध जातक, इसमें इस प्रकार की चमक वाले स्थापत्य का जिक्र आता है। यहां तक कि एक जो सिकंदर के साथ आया हुआ या सिकंदर का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति है, उसने भी ये कहा है कि यहाँ के भवनों में, राजभवनों में चमक होती थी। दूसरा, बृहत कल्पसूत्र भाष्य में यह बात कही गई है, और औपपातिक सूत्र में ये कहा गया है कि दीवालें आदर्श तलोपम, आदर्श मतलब दर्पण, दर्पण में जैसे हम देख सकते हैं, इस तरह की दीवालों का जिक्र इसमें आया है। और ये कैसे करते थे, इसका जिक्र है आपस्तंभ श्रौत सूत्र में। श्लक्षणी कर्णैः श्लक्षणी कुर्वन्ति, जिसको श्लक्षणी करना है, जिसको चिकना करना है, जिसमें आभा निकालनी है, उसको कर रहे हैं, कुर्वन्ति, उस काम को किया जा रहा है। इस प्रकार का ये जैन साहित्य में हमको प्राप्त होता है आपस्तंभ श्रौत। और इसके मूल, पांडे जी बीच में बोल रही हूँ, माफ कर दीजिए, आप सुन रहे हैं पांडे जी? पद्मजा बोल रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ पांडे जी, 45 मिनट्स हमने टारगेट किया था, लेकिन सॉरी अभी 1 घंटा हो गया है, और इसके बाद 10 मिनट में, और दो बच्चे भी वेट कर रहे हैं गाने के लिए। आपने तो बहुत ही हमको जानकारी दी है, और hardly 10 minutes. Try to wrap it in 5 minutes. Thank you. Yes. Okay. हालांकि मैं घड़ी अपने सामने रखे हूँ। तो देखिए, कुछ संदर्भ मैं आपको अब बतलाऊंगा। दीप्त वैश्वानर प्रभान, ये शब्द ही अपने आप में, विभ्राजमाना, ये शब्द अपने आप में, रेफरेंसेस हमने दिए हुए हैं, वाल्मीकि रामायण में है, किष्किंधा कांड में ये शब्द आता है। और ये शब्द नहीं आते, ये किसी न किसी स्थापत्य के संदर्भ में आते हैं। एक गुफा का वर्णन है, उसमें ये आता है, तो वाल्मीकि ने इसका संदर्भ दिया हुआ है। लेकिन इस पर जो विशेष कार्य किया, वो स्वनाम धन्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नाम मैंने पहले भी लिया है। उन्होंने महाभारत के सभा पर्व में जो नारद द्वारा ब्रह्मा की सभा, यम की सभा, इंद्र की सभा आदि का जो विवरण दिया है, उनमें से बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी सामग्री निकालकर हम लोगों के सामने रखी, और बहुत सारे शब्द प्रभा, भाज, भ्राजस्व, दीप्त, दिव्य, मणिमय, ज्वलमान, सिद्ध, तेजस, वर्चस, वैदुर्य, गर्भ आदि, ये सब शब्द हमको प्राप्त होते हैं उस सभा के निर्माण के वर्णन में, यानी सभा के स्थापत्य के अंग के रूप में ये बातें आ रही हैं। ये ध्यान देने की बात है। अब उस समय जो शिल्पी है वो मय नाम का शिल्पी है, और उसने ये सारा कुछ किया हुआ है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा, समय का ध्यान हमें विशेष रूप से रखना है। तो ये दीप्त वैश्वानर प्रभान और विराजमाना, जो महाभारत में मय है, वही मय रामायण में भी है, उस गुफा का निर्माण करने वाला। वहां पर वो सभा का निर्माण करता है इंद्रप्रस्थ में, और रामायण में वह विंध्य क्षेत्र में गुफा का निर्माण करता है, जहाँ स्वयं प्रभा नाम की देवी वहां विराजमान थी। देखिए, ये कुल 29 ऐसे शब्द हमको मिले हैं, जिनको इकट्ठा करके जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जितना किया, उसके आगे का जो भी हमको प्राप्त हुआ, वो सब हम यहाँ पर एकत्र करके आपके प्रमाण के लिए रखे हुए हैं। और देखिए, प्रमाण इस बात का भी है कि अशोक स्वयं भी इस बात का उल्लेख करता है।
वो अपने अभिलेखों में कहता है दिव्यानि रूपान, दिव्य रूपों का उसने उल्लेख किया हुआ है। दिव्य शब्द से निश्चित है दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है प्रकाशमान, अर्थात चमकना, प्रकाश युक्त होना। और यह प्रकाश बुद्ध स्वयं है। कैसे? क्योंकि बुद्ध हस्ती के रूप में ही यशोधरा के गर्भ में आए थे। इसका वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है, श्वेतो हस्ति, सर्व श्वेतो हस्ति। तो इस तरह से ये जो चमक है ये पूरा धर्म का प्रतीक है, ये पूरे बुद्ध का प्रतीक है, ये पूरे उस ज्ञान का प्रतीक है आदि आदि। तो ये प्रमाण में कि जो अशोक सोच रहा है उसको ही कला में निश्चित कर रहा है। ये धौली का हाथी है जो अभी जैसे कि गर्भ में से निकल रहा हो या गर्भ में प्रविष्ट हो रहा हो आदि। इसके और भी दूसरे एक सेकंड देखिए, यहाँ भी गजतमे ये कालसी में बनाया गया है हाथी, ये धौली का हाथी है। तो सर्व से तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि अगर ये सब था, इतने शब्द थे और स्थापत्य के संदर्भ से ये सारे शब्द थे, तो ये किया भी जाता था। इसका एक उल्लेख कलिंग देश के खारवेल का जो हमने अभी जिक्र पहले किया था, उसने भी ये कहा है, और ये कहा है कि हमने ऐसा स्तंभ बनाया जो वैदूर्य गर्भ, यानी हीरे को काट देने के बाद जो चमक आती है वैसी चमक वाले स्तंभों का निर्माण हमने कराया। और उसके लिए बल्कि कहा है कि 75,000 पण खर्च किए थे उसमें। तो ये सारे फिर वही संदर्भ हैं, इसलिए इनको हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उस समय ये सब था, हो रहा था। ये देखिए NBPW जो भांड है हमारे कृष्ण मार्जित मृद भांड, और ये भगवान बुद्ध की अस्थि जिसमें रखी गई थी वह पात्र जो पिपरावा से प्राप्त है, ये सारे चमकदार बर्तन और ये सब हैं। तो अब ये प्रश्न जो वास्तविक है और उसको बड़े संक्षेप में मुझे अब आपके सामने रखना है, पत्थर में चमक आती कैसे थी? कैसे आती थी पत्थर में चमक? ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर कोई नहीं दे सका है। लेकिन हमें जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उससे ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें कोई शंका नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतल में उस पद्धति का संकेत मिलता है। महाराज दुष्यंत के माध्यम से कवि कालिदास कहलाते हैं कि इंगुदी हिंगोट के फल, हिंगोट वर्तमान नाम, इंगुदी संस्कृत का नाम है, फल को कूटने से शिलातल चिकने हो जाते थे। अर्थात इन सारे मूर्तियों पर इंगुदी के तेल का प्रयोग किया जाता था और उस प्रयोग के साथ उसकी घिसाई होती थी, घर्षण और मर्षण होता था और तब ये चमक निकल आती थी। ये पूरा श्लोक शाकुंतल से है। प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फलमिदा सुचांत इवो फला। उपल जो है हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर इंगुदी कुटी गई है क्योंकि वे एकदम चमक रहे हैं, चमकीले हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एकदम सटीक निकल आया कि किस तरह से इस चमक को प्राप्त किया जाता था। ये सारी बातें उस इंगुदी के संबंध में है, मैं इन्हें छोड़ता हूँ। ये केवल प्रमाण के लिए आपके सामने हम रख रहे हैं। इंगुदी का फल, उसके प्रयोग आदि की चर्चा है, बड़े विस्तार से मैंने इसको वो किया है। अब देखिए श्लक्षीकरण ही है, श्लक्षणी कुर्वन्ति, और कालिदास का प्रयोग है स्निग्ध और प्रस्निग्ध, दो शब्दों का प्रयोग इंगुदी के साथ आता है। और इंगुदी में भी स्निग्धता का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। इसका कार्य होता है और चमक आप देख लीजिए, जिस लकड़ी से उसको पेला जाता है, तिल का तेल निकाला जाता है और उसके कारण इसमें चमक आ जाती है। ये एक है। तो हम इतना ही केवल कहना चाहते हैं कि कालिदास ने यह एक संदर्भ हमको दिया।
ये संयोग था कि मैं कालिदास पढ़ रहा था और उसको मुझे प्राप्त हुआ। इंगुदी के तेल की चर्चा कालिदास ने भी 2-3 जगहों पर की है, उसका हमने सारा उल्लेख किया है। और कहने का अर्थ ये कि कालिदास के जमाने में यह प्रयोग में था, तभी तो उन्होंने उल्लेख किया, यह परंपरा से ज्ञात था तो उल्लेख किया। लेकिन हमारे शोध छात्र डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय, जो इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंटेनरी फेलो हैं, उन्होंने लखनेश्वर डीह नाम की एक जगह है गाजीपुर बलिया के बॉर्डर पर, वहां से सूर्य की गुप्त काल की एक मूर्ति ठीक उसी प्रकार की चमकदार खोज निकाली है। और उसका ये दर्शन स्पष्ट है कि उस समय तक लोग इसको जानते थे, करते थे, बनाते थे। जो अब दो राय नहीं रह गई कि यह कैसे बनाया जाता था। ये सब संदर्भ हैं, वो हम दोबारा नहीं कहेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। ये सारा इंगुदी और के जो गुण हैं, के लक्षण हैं, वो सब इस मत की ओर हमको प्रमाण हैं। और वो आगे बढ़ते हुए निर्घंट और ये कथा से सागर, याज्ञवल्क्य स्मृति, सुश्रुत संहिता, महाभारत, तैत्तरीय, प्रातिशाख्य और वेद तक हम पहुंचते हैं। और ये सारे संदर्भ हमने आपके सामने रखे हुए हैं, ये उनके संदर्भ हैं। और अंत में श्लक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उसी चमक। और एक उस तैलीय पदार्थ की तरह जो नीचे उतरकर लोमराशि के हृदय में समा जाता है, इसका तत्वर्णन है। ये अथर्ववेद है। अथर्वशिष्ट में ये संदर्भ है। और ऋग्वेद के श्री सूक्त में स्निग्ध शब्द प्रयोग कालिदास ने किया। और इसमें एक रह गया नहीं लगता है। और ऋग्वेद में श्लक्षण शब्द का प्रयोग और ऋग्वेद में आगे चल करके स्निग्ध शब्द का प्रयोग, और ऋग्वेद के ही इन प्रमाणों के साथ अब मैं कहता हूं कि यक्ष प्रश्न उत्तरित हो गया। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आनंदमय और आश्चर्यजनक बातचीत के लिए। आज हम सब ने सुन लिया शेर की गरजना आपकी आवाज में। Thank you so much. I think all of us here who have listened to this webinar will agree that this has been indeed a very insightful talk. Moving on, our next performance is by Srirang Krishnan. Srirang started learning Carnatic music at the age of 4 from Mr. Babu John sir, Shri T.S. Anantaraman sir, Shri Padukode Vishwanathan sir, and has now been training even in Hindustani music under the very known Pandit Bhavdeep Jaipuriwala from Gusain Gharana. He has recorded for Ram Sampath, Sona Mahapatra, Meet Brothers, Bhavra Brothers, Inder and Sunny Bhavra, and also done a lot of corporate recordings for the film director Pradeep Sarkar. Srirang's song Khwaja was also released by the Times of India. Srirang and his band also did the opening for famous shows Starry Nights 2.0 with Komal Nahata for the famous starred actors Arjun Kapoor and Pariniti Chopra, which was telecasted on Z and is now streaming on Z5. He is a radio artist at Fever 104 FM, winner
at NXM and NX Jwala, Spotlight in 2016, winner of Malhar and Enigma 2. Srirang is regularly performing in and out of Mumbai as a lead vocalist with his band, which performs Sufi, semi-classical and Bollywood numbers. Srirang's original composition, Vanita, was released for the Women's Security Cybercrime India, released on all music platforms. Atmalaya is happy to present Srirang today. Namaste. Sabko mera pranam aur namaskar. Firstly, I would love to wish everyone a very happy Independence Day. And this gives me an immense pleasure to perform on such a momentous day on India's 74th independence. And I'm really very grateful and thankful to Dr. Padmaja Suresh ma'am, Atmalaya Foundation and Indology Foundation to give me this wonderful opportunity to perform in front of everyone. And I'm really thankful, and I'm going to start my first song. This is my first original composition which I've done for a dedication to all the women of our country. As sorry to interrupt, Srirang, your video is sideways. Can you please shift your camera? Is it better now? You may have to flip it. We are able. Yes, thank you. So I'm going to start with my first song, which is my original composition, which I have done, which I've composed for all the women of our country. As आजकल महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो I want to stop. I dedicated this song, made this song to good things for women and Srirang, are you here? Can we quickly give him a call and check? He's here, Chandana. Am I audible? Yes. Yes, Srirang. ये बहते आंसू कोई रोको, सहती खामोशी को अब बोलने दो। ये बहते आंसू कोई रोको, सहती खामोशी को अब बोलने दो। घाव ये बरसों के आज भी ताजे हैं, घाव ये बरसों के आज भी ताजे हैं। गहरे सन्नाटों में मेरी आवाजें हैं। ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला। हे ना 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 रे ना रहना रे, क्या थी मेरी खता बेवजह की वजह, क्या थी मेरी खता बेवजह की वजह। ना उम्र की शर्म, ना दर्द की खबर,
सोया जहान था, अनजान नाम था, दो पल की जिंदगी किस्सा ये आम था। ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, ओ सुन ले वक्त है बदला, रे सुन ले वक्त है बदला। आसमां वो छूले तारों से करते बात, आसमां वो छूले तारों से करते बात, सागर की गहराई नापे उसके काबिल हाथ है, सागर की गहराई नापे उसके काबिल हाथ, ना कहे उससे बेचारी, ना समझ उससे अबला, ना कहे उससे बेचारी, ना समझ उससे अबला। ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला, ओ सुन ले वक्त है बदला, सुन ले वक्त है बदला। Thank you. The second song which I'm going to sing, that's a mashup of patriotic songs for this beautiful occasion, and I'm really proud to be performing all these three songs, as all these three songs are very close to my heart, and this particular section of songs is dedicated to this beloved country, India. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आस आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आस आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन।
मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरे इश्क कहे, फीका पड़ गए तेरा रंग कहे, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जा, अम्मा अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।